اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، شہر کے مختلف علاقوں میں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بادل جم کر برسے۔ بادل برسنے سے جل تھل ایک ہو گیا۔ راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں بھی بارش۔ محکمہ موسمیات کی جڑواں شہروں میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ پشاور، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں بارش اور ژالہ باری۔ کوئٹہ میں پانی دفاتر میں جمع، سڑکیں بھی زیر آب۔ موسیٰ خیل، دکی اور چمن میں بھی بادل برسے۔ پشاور اور خیبر میں بھی بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ لاہور، رائیونڈ، قصور، ملتان سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو امریکی صدر جو بائیڈن کا خط، نو منتخب حکومت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ لکھا، پاکستان سے مل کر انسانی حقوق کے تحفظ اور ترقی کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ عوام کی شراکت داری دنیا اور دونوں ملکوں کی سلامتی یقینی بنانے میں نہایت اہم۔ چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ صحت عامہ کا تحفظ، معاشی ترقی اور سب کے لیے تعلیم جیسے مشترکہ ویژن کو مل کر فروغ دینے۔ امریکہ پاکستان گرین الائنس فریم ورک سے ماحولیاتی بہتری کے اتحاد کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ امریکی صدر کے مطابق پائیدار زرعی ترقی، آبی انتظام اور 2022 کے سیلاب کے تباہ کن اثرات سے بحالی میں پاکستان کی معاونت جاری رکھیں گے۔ دونوں اقدام کے درمیان مضبوط پارٹنرشپ کو تقویت دینے، عوام کے درمیان رشتے مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ علیمہ خان کا پارٹی سیاسی امور سے کوئی تعلق نہیں۔ بانی تحریک انصاف کا کور کمیٹی کے نام اہم پیغام۔ پالیسی بیانات کا اختیار صرف رؤف حسن کو ہوگا۔ بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی کا خصوصی پیغام کور کمیٹی کو پہنچایا۔ شیر افضل مروت اور عمیر نیازی کے متنازع بیانات پر تنقید۔ رؤف حسن پی ٹی آئی کے پالیسی امور کے ترجمان مقرر۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نئی حکومت کی انوکھی منطق، مشترکہ مفادات کونسل سے وزیر خزانہ کو ہی نکال دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل نو کر دی۔ وزیر اعظم ہی سربراہ ہوں گے۔ وزیر خارجہ اور وزیر دفاع پہلی بار مشترکہ مفادات کونسل میں شامل۔ 8 رکنی مشترکہ مفادات کونسل میں 4 وزرائے اعلیٰ بھی ممبران ہوں گے۔ امیر مقام بھی کونسل میں شامل۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی کوشش ناکام بنا دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا، مل کر ملک کی سالمیت کے لیے کام کریں گے۔ اس وقت سیاسی افراتفری کا خاتمہ ضروری ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو یکسوئی کے ساتھ پاکستان کو چیلنجز سے نکالنا ہوگا۔ کرپشن کا خاتمہ ہماری انفرادی اور مشترکہ ذمہ داری ہے۔ 76 سال سے اسمگلنگ نے ملک کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ چینی بیچ کر ڈالر کما سکتے تھے، افغانستان اسمگل کر کے نقصان ہوا۔ اس سال محصولات کا تخمینہ 9 کھرب کا ہے، لیکن یہ بھی محتاط اندازہ ہے۔ 2700 ارب محصولات سے متعلق کیسز عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ کھربوں روپے کے محصولات آنے چاہیے لیکن نہیں آ رہے۔ اگر یہ آدھا پیسہ بھی آ جائے تو کینسر ہسپتال بن سکتے ہیں، قرضوں میں کمی آ سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق سے استعفے کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی قانونی ٹیم کی رؤف حسن سمیت اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ رؤف حسن نے کہا، 6 ججز نے 2 دن سے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہوا ہے، چیف جسٹس نے کوئی ایکشن نہیں لیا، فل کورٹ بلا کر تماشا کیا گیا۔ نیاز اللہ نیازی نے کہا، خط نے ثابت کر دیا نظام عدم مفلوج ہو گیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس خط گیا، مگر کیا ایکشن لیا گیا؟ 2 دن سے ملک میں جنگل کا قانون نافذ ہے۔ خط کے بعد نہ عامر فاروق چیف جسٹس رہ سکتے ہیں نہ قاضی فائز عیسیٰ۔ پریس کانفرنس کا وقت گزر چکا، اب پورے پاکستان سے ایک تحریک کا آغاز کریں گے۔ نعیم حیدر پنجوتا نے کہا، بانی پی ٹی آئی کے گھر 26 گھنٹے آپریشن کیا گیا، چیف جسٹس خاموش رہے۔ مخصوص نشستیں اور بلے کا نشان پی ٹی آئی سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چھینا۔ سکندر سلطان راجہ کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ سائفر کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تھا، کیوں نہیں بنا؟ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسلام آباد میں چینی سفارت خانے آمد۔ شانگلہ حملے کی تحقیقات کے لیے چین سے آئی خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم سے ملاقات۔ وفاقی وزیر داخلہ نے چینی ٹیم کو اب تک ہونے والی تحقیقات سے آگاہ کیا۔
मुलाकात में चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के इक़दामात पर तबादला ख्याल। पाक चीन ताउन को सबोताज करने की कोई कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। चीनी सिफारत खाने का वाज़े ऐलान। कहा, पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। जो अवाम पीते थे हुक्मरानों को पीना पड़ा तो शोर मच गया। अरकान पार्लियामेंट का आलूदा पानी पीने का इंकिशाफ। पार्लियामेंट हाउस और लॉजेस में पीने का पानी सेहत के लिए नुकसानदेह करार। पाकिस्तान कौंसिल बराए तहकीक आबी वसाइल ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को मुरासला भेज दिया। पार्लियामेंट हाउस लॉजेस का पानी आलूदा पाया गया। सेमाही वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट में इंकिशाफ। दस्तावेज के मुताबिक डिप्टी स्पीकर रूम समेत 6 मकामात से पानी के नमूने टेस्ट किए गए। तमाम नमूनों का पानी आलूदा पाया गया। वाटर कूलर्स, ओवरहेड टैंक और नलके से लिए गए नमूनों का पानी गैर महफूज करार। पार्लियामेंट लॉजेस में 3 ब्लॉक्स के टैंकों का पानी काबिल इस्तेमाल नहीं। नवाज शरीफ की दिल की मरीजा 3 साला बच्ची इनाया फारूक की अयादत। नवाज शरीफ ने अपनी सरपरस्ती में बच्ची के दिल की कामयाब सर्जरी कराई। बच्ची की वालिदा का नवाज शरीफ का शुक्रिया। मफाहमत नहीं मज़ाहमत का वक्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा है विफाक से रवाबित खत्म कर दें। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, जल्द बड़ी तहरीक शुरू करने वाले हैं। आवाम को हमारा साथ देना होगा। कानून की बालादस्ती के लिए बाहर निकलना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर दबाव डाला गया। जजेस की तौहीन में शहबाज शरीफ का मुकम्मल हाथ है। 2 साल में पीटीआई जजेस को शहबाज दौरे हुकूमत में हरासा किया गया। जजेस के साथ ये वाकयात पूरे पाकिस्तान पेश आए। 6 जजेस ने जो बहादुरी दिखाई ये कौम के हीरो हैं। NA 207 आसिफा भुट्टो बिला मुकाबला MNA मुंतखब। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक NA 207 पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए 11 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। आसिफा भुट्टो समेत 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। आसिफा भुट्टो जरदारी के मुखालिफ तीनों उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। PP 93 भखर से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तब्दील। हमाद अजहर कहते हैं, हल्के से PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सिकंदर अहमद खान होंगे, जो हालिया जनरल इलेक्शन में भी PTI के हिमायत याफ्ता थे। ज़िमनी इलेक्शन में PP 93 भखर से PTI का टिकट अफजल ढांडला को देने पर पार्टी में शदीद इख्तलाफात हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को माहाना 8 अरब रुपए कमी का सामना। दस्तावेज के मुताबिक सूबाई हुकूमत की माहाना आमदन 80 अरब रुपए और अखराजात 88 अरब रुपए। विफाक से माहाना 69.5 अरब रुपए मिलते हैं। पैदावार और टैक्सों से मिलने वाली रकम 11.5 अरब रुपए। 8 अरब रुपए की कमी से सूबाई हुकूमत को बजट बनाने में भी मुश्किलात। पैसे की कमी भी खैबर पख्तूनख्वा की अफसरशाही को मरात लेने से ना रोक पाई। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में फ़र्क कम करने के लिए कमेटी तश्कील। काबीना इजलास में हुए फैसले के मुताबिक कमेटी अफसरान की शिकायत पर हाई कोर्ट की हिदायत का जायजा लेगी। वज़ीर आला के मुशीर बराए खजाना, वुज़रा, सेक्रेटरीज PND शामिल। कमेटी में वुज़रा के अलावा इस्टेब्लिशमेंट और पॉपुलेशन वेलफेयर के नुमाइंदगान भी शामिल। मुख्तलिफ महकमों के 973 से ज्यादा अफसरान ने पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर की। अदालत ने सरकारी मुलाजमीन के दरमियान इम्तियाजी सलूक खत्म करने का हुक्म दिया। महकमा खजाना ने माली बहरान के पेश नज़र अफसरान के मुतालबे की मुखालफत की। BRT स्कैंडल में मुलविस ठेकेदारों के 75 बैंक अकाउंट्स मुंजमद। BRT स्कैंडल से मुतल्लिक एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। ठेकेदारों के 2 रिहायशी प्लॉट सील करने के भी अहकामात जारी। एहतसाब अदालत ने DG NAB के अहकामात की तौसीक कर दी। पहले दिन से पंजाब हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आप लोगों के मुताबिक सिर्फ प्रोग्रामों का ऐलान हो रहा है। अज़मा बुखारी की नुमाइंदा ABN से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिन प्रोग्राम्स का ऐलान किया वो सब 1 साल के हैं। पंजाब के अलावा और कौन सी हुकूमत चल रही है? पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी भी देख लें और दूसरी हुकूमतों की कारकर्दगी भी देख लें, आपको पता चल जाएगा।
वफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर तकर्रुर तबादले। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान तब्दील, अली नासिर रिजवी ताजुनात तब्दीली का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी। अकबर नासिर खान को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। ग्रेड 20 के सैयद अली नासिर रिजवी DIG ऑपरेशंस लाहौर ताजुनात थे। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान को एडिशनल सेक्रेटरी पावर मुकर्रर। सेक्रेटरी तिजारत खुरम आगा को सेक्रेटरी दाखिला ताजुनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर 3 साल के लिए चेयरमैन। नादरा ताजुनात वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए वजारत दाखिला की समरी मंजूर कर ली। निगरान हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा ताजुनाती ताहुक्म सानी की थी। निगरान दौर की ताजुनाती और मुतल्लिका रूल्स की मुंतखब वफाकी हुकूमत से तौसीक की जरूरत थी। वफाकी काबीना ने नादरा रूल्स 2020 में रूल 7A शामिल करने की मंजूरी दी। किसी भी हाजिर सर्विस ऑफिसर को कौमी मुफाद में चेयरमैन नादरा ताजुनात किया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन नादरा की ताजुनाती के खिलाफ दरखास्त पर समाअत नोटिफिकेशन पेश करने के लिए वफाकी हुकूमत को मोहलत। मजीद कार्रवाई 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। साबिक रुकने कौमी असम्बली आलिया हमजा और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद नए मुकदमे में गिरफ्तार। दोनों खवातीन को कमरमुशानी मियावाली पुलिस स्टेशन को जलाने के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों खवातीन की अदालत में तलबी के लिए दरख्वास्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दायर कर दी। जलाओ घेराव केस में कुछ दिन कबल अदालत ने रिहाई के अहकामात दिए थे। जजेस के मामले पर रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन मंजूर नहीं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चाहिए तो ये था कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाते। इस मामले को देखने के लिए जुडिशियल इंक्वायरी कराई जानी चाहिए। हमारी किसी के साथ कोई नाराजगी नहीं। PTI रहनुमा आमिर डोगर कहते हैं जजेस का खत चार्जशीट है। मामला चीफ जस्टिस की कोर्ट में है। अब फैसला किया जाए मुल्क आइन और कानून के तहत चलाना है या किसी की मुदाखलत के साथ। के साथ कोई फाइनल ना डिस्कशन हुई है ना एग्रीमेंट हुई है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि बाय द टाइम दैट वी रैप अप दिस फिस्कल ईयर, सो एंड जून अर्ली जुलाई तक कम से कम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक हम पहुंच जाए। तो ये हमारी ख्वाहिश है। ये कमेटीज एंड मोर कमेटीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं गवर्नमेंट में, उनको हमने मोबिलाइज करना है और उनको हमने फाल बनाना है। पाकिस्तान का IMF से नए बड़े कर्ज प्रोग्राम का ऐलान। स्टाफ लेवल मुआहिदा जून से कबल करना चाहते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा वाशिंगटन में 14 और 15 अप्रैल को IMF हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। IMF मुआहदे पर रकम के हवाले से बात नहीं कर सकता, लेकिन हम कम अज कम 3 साल का प्रोग्राम चाहते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल पहले से बेहतर नोट पर दाखिल हुए। करंट अकाउंट में नुमाया कमी आई, बल्कि फरवरी में ये सरप्लस हो गया। अदलिया को अहम इशू से फरागत हो तो FBR की महसूलात तवज्जो के मुस्तहिक हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा सुप्रीम कोर्ट में 102 अरब महसूलात के केसेस फैसलों के मुंतजिर हैं। हाई कोर्ट में 742 अरब, ट्रिब्यूनल्स में 1700 अरब के महसूलात केसेस हैं। कोशिश में हूँ कि पता चले कि ये सिलसिला कब से है। कई साल पहले PAC में मसला उठाया, FBR ने लिफ्ट ना कराई। ये सब FBR टैक्स ना दहिंदा और अदलिया की मिली भगत से होता है। 2544 अरब हमारे बहुत से दुख दूर कर सकते हैं। सेहत, तालीम और दिफा के अखराजात पूरे हो सकते हैं। कर्ज और IMF से निजात मिल सकती है। थोड़ी ईमानदारी और वतन से मोहब्बत की जरूरत होगी। कराची में सरकारी नौकरी का झांसा देकर खातून से मुबज्जिना ज्यादती, मुकदमा दर्ज। मुतासरा खातून के मुताबिक फहद नामी शहरी ने इंटरव्यू के बहाने फ्लैट पर बुलाकर ज्यादती की। मुतासरा खातून की IG सिंध के नाम दरखास्त लिखा। मुलजिम ने खुद को पुलिस अफसर का बेटा जाहिर किया। फ्लैट पर फहद का दोस्त असलहे समेत मौजूद था। जबान बंद रखने के लिए धमकियां दी गई। पैसे लेकर मामला खत्म करने का भी कहा। वाक़े का मुकदमा शराय फैसल थाने में चंद रोज पहले दर्ज हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जमानत पर है। DNA रिपोर्ट का इंतजार। खातून के कपड़े और दीगर शवाहिद सेल कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के नोटिस पर लिया में ज़हनी माजूर बच्ची के साथ ज्यादती का मुर्तकिब मुलजिम चंद घंटों में गिरफ्तार। वज़ीर आला की हिदायत पर लिया पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम इब्रार को गिरफ्तार किया। मुलजिम की बच्ची को अस्पताल से वरगला कर ले जाने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई।
सखर के अवाम दोहरी अजियत का शिकार, डाकुओं से बच जाएं तो पुलिस जेब खाली कर दे। एसएसपी सखर का पुलिस एहलकार की जानिब से मोटरसाइकिल सवार से रिश्वत लेने पर नोटिस। वीडियो सामने आने पर पुलिस एहलकार अहमद बख्श को मुअत्तल करके क्वार्टर गार्ड कर दिया। वीडियो में पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल के कागजात न होने पर शहरी से रिश्वत तलब करते देखा गया। ओकाड़ा थाना सदर की हदूद में मुबैना तौर पर बासर मुलजिम का सियासी मुखालिफिन पर बदतरीन तशद्दुद, मियाँ बीवी को बांधकर मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरीन के मुताबिक मुलजिम ने अपनी जमीनों के सामने से गुजरने पर तशद्दुद किया। मुलजिम उसी सड़क से गुजरने पर पहले भी कई लोगों को तशद्दुद का निशाना बना चुका है। मुलजिम साबिर सियासी असर रसूख के सबब मुखालिफिन को तशद्दुद का निशाना बनाने का आदी है। मुतासरा खातून की डीपीओ को दरखास्त, वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील। महाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह महंगाई 22.5% से 23.5% के दरमियान रहने का इम्कान। अगले माह महंगाई कम होकर 21 से 22% के दरमियान रहेगी। रवा साल डॉलर रेट में 5 रुपए 54 पैसे कमी 278 रुपए पर आ गया। हर महीने पाकिस्तान की माली पोजीशन बेहतर हो रही है। आलमी मालियाती फंड से 1.1 अरब डॉलर की अगली किस्त आइंदा माह मिल जाएगी। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही अडयाला जेल मुंतकिल। परवेज इलाही 2 रोज से इस्लामाबाद की पिम्स अस्पताल में जेरे इलाज थे। परवेज इलाही अडयाला जेल में गिरने से शदीद जख्मी हुए। सिविल एविएशन अथॉरिटी और एफबीआर आमने सामने। एफबीआर ने सिविल एविएशन अथॉरिटी के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। सिविल एविएशन अथॉरिटी एफबीआर की 13 अरब रुपए टैक्स की नादहिंदा है। एफबीआर के मुताबिक जब तक सिविल एविएशन अथॉरिटी हुकाम टैक्स अदा नहीं करते बैंक अकाउंट्स मुंजमद रहेंगे।